Yes, good evening, Mrunal. Hope you all are fine. And let me yes. Good evening, Tanvi. Column. And the column 2. Wait a minute. Yes, window. Yes. So, is it the screen visible to everyone? Yes. Thank you, Priyanka. Thank you, Ganesh. Yes. Yes. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Okay, my humble request to every participant, as everyone knows that we are starting our new batch of this month from 24th of June. So if any one of your friend, maybe a colleague or maybe your relative would like to join our course, so I would please recommend them to join from 24th. And if you recommend them and if you get any lead from your side, so definitely you will get 10% cashback of that fees. Suppose our fees is clear everyone this. So I would request everyone, if any one of your friend or maybe a colleague or maybe a relatives would like to join for such a wonderful course, maybe to get into banking sector, maybe a railway or SSC or maybe a government sector. So please recommend them our course. And the batch is starting from 24th of June of this month. And if you recommend and if they join, so definitely will get 10% cashback on it. Okay, now students, see what is the match the column. Let me explain you first. First, understand what it is stand for. This is the new topic which is being introduced by IBPS, maybe from last 2 years. ये काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. बट यू नीड टू हैव, यहाँ पर थोड़ा सा एक पैटर्न है कि थोड़ा सा आपका ग्रामर काफी अच्छा होना चाहिए, जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा. ग्रामर विच इज वेरी IMP, बट दिस विल बी फॉर इन एग्जाम फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 3 मार्क्स. यहाँ पर देखो, लेट मी जस्ट रीड दिस व्हाट इट इज गिवन हियर. So यहाँ पर दिया है, in the following questions 2 columns are given like this. Here this is column number 1 and this is column number 2. In first column, sentences, phrases A, B and C, and देखो 3 sentences है A, B and C. ये match the column means what? हम लोग ने देखो, आपण ज्यावेळी स्कूल मध्ये आपण होतो त्यावेळी आपण एक जोड्या जुळवा एक आपल्याला नेहमी यायचं आणि आपण ते मॅच करायचो. सेम टॉपिक I have. And in the second column we have D, E and F. D, E and F. A sentence phrase from the first column may or may not connect with the another sentence phrase from the second column to make up grammatically and contextually correct. आपको दो चीजें देखनी है. When you are forming a sentence, that sentence should be grammatically correct, and if you are forming it, so it should give you meaningful, meaningful sentence. Each question has a 5 options which display the questions in which the sentence can be joined to form a grammatically and contextually correct sentence. Choose the pair which makes it grammatically meaningful. Now let us see. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है. We have a 2 columns followed by 5 options. आपको sentences कोई ज्वाइंट नहीं करना है. यहाँ पर ऊपर दिया है D and E. I'll just write here. यहाँ पर D लिख देता हूं और यहीं पर E लिख देता हूं. Yes. 1 minute. हाँ, yes, definitely Mrunal. All ABC. D का है all ABC, and what is E? E is nothing but only A and B. Only A and B. Yes. Do not write this. Okay. Kanchan, my voice is clear. मेरा आवाज कम आ रहा है. प्रियंका, Tanvi, Shubham, Sarvesh, am I clear to everyone? My voice is audible. Okay, Praneet. Yes, yes. Please, जिन्हें भी मेरा आवाज कम आ रहा है, I would request them please relog in again. Okay, thank you everyone. Okay, thank you, Hina. Chalo, no problem. Okay.
अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं. यस, ओके, होप नाउ इट इज क्लियर एवरीवन. मुनाल, दिस क्लियर नाउ? यस, नाउ सी कॉलम 1 में स्टूडेंट्स क्या दिया है. वी हैव, देयर आर 3 sentences. A, the power of the people is more important than, we cannot progress without the participation of, and C, we have, it is not possible to move forward without. These are the sentences we have, and we have in column number 2. What is there in the column number 2? The power of the people. Second, we have the 1.25 billion people of the country, and third, we have the power of the government. ये हमें दिया हुआ है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमारे पास नीचे 5 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी. इसमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड है जो हमें देखना है. तो आपको करना क्या है, आपको सेंटेंसेस ज्वाइन नहीं करना है, आपको दिए हुए ऑप्शन में से ही देखो. अभी यहाँ पर ए एंड एफ दिया है, तो आप ए और एफ देखो, खाली आपको इतना चेक करना है कि वेदर ए एंड एफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली दे आर करेक्ट और नॉट. अगर करेक्ट नहीं है तो इसे कैंसिल कर दो. देन लेट्स गो टू द बी. बी में देखो, व्हाट इज बी. वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द 1.25 बिलियन ऑफ द कंट्री. यस, ये सेंटेंस करेक्ट है क्या, इसका मीनिंग है क्या. अगर ये करेक्ट है तो इसको यस कर दीजिए. वैसे आपको स्टूडेंट्स चेक करना है, और जैसे भी आपको लगता है, अगर समझो तीनों करेक्ट हो जाते हैं, सो व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी ऑल ए बी सी. अगर आपको लगता है ओनली ए एंड बी करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ई. ओके, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. आपको खाली ऑप्शन में चेक करो. सर्वेश का आंसर सबसे पहले आ गया. सर्वेश कह रहा है कि सर यस, फॉलोड बाय प्रियंका. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स रियली ग्रेट. यस, सो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसको रीड करते हैं. पहले हम लोग पढ़ेंगे ए एफ. व्हाट इज ए एफ. A is what? The power of the people is more important than the power of the government. Yes, देखो, अपने देश में तो पावर ऑफ पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सरकार बनती ही लोगों के वोट से. तो विदाउट, बिकॉज वी हैव अ लोकतंत्र, वी हैव अ लोकशाही, सो डेफिनेटली द पावर ऑफ द पीपल, मतलब हमें अगर किसी सीएम को चुनना है या किसी को एमएलए को चुनना है, तो हमारा वोट ही वहां पर काम में आता है. सो द पावर ऑफ द पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस. उसको मीनिंग भी है एंड ग्रामेटिकली भी करेक्ट है. व्हाट इज सेकंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज बी. वी कैनॉट प्रोग्रेस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द 1.25 बिलियन पीपल ऑफ द कंट्री. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. हम लोग प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे जब तक सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. So this sentence also has a meaning. And what is students third one? What is CD? See, it is not possible to move forward without the power of the people. So students देखो, यहाँ पर तीनों सेंटेंस का जो नीचे कनेक्शन दिया हुआ है, ए एफ बी सी डी, सारे मुझे करेक्ट लग रहे हैं. अगर वो सारे करेक्ट है, इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, ऑल ए बी सी, ऑप्शन नंबर. इज दिस क्लियर एवरीवन. तो ये स्टूडेंट्स आपको 3 मार्क के लिए आता है, जहां पर आप 3 में से 3 भी स्कोर कर सकते हो इन अ फ्रैक्शन ऑफ. इसीलिए इंग्लिश बहुत इजी होता है. इंग्लिश लैंग्वेज आई वुड से वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. यस, इज दिस क्लियर एवरीवन. सर्वेश, मृणाल, भारती, कांचन, प्रियंका, तन्वी, स्नेहा, श्वेता. Yes, that's really great. Thank you so much, students. Thank you so much. Okay, now I'll give you. Yes. थोड़ा सा इसे में कम करता हूँ. Yes, do it. Question number 2 ट्राई करो. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Yes. Try this.
क्या होगा आंसर? कॉलम नंबर 1 says when it comes to LED lighting technology, okay, let me check. स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा पढ़ते समय you need to be very careful because you need to check grammatical mistakes also simultaneously. ओके चलो, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. सी अब यहां पर कैसे करना है. सी पहले हमें देखना है व्हाट इज बीडी. लेट अस सी बीडी. नितेश कह रहा है कि ई होगा, प्रियंका कह रही कि बी होगा. ओके चलो, नो प्रॉब्लम, लेट सी. सी यहां पर कंचन शुभम कह रहे ई होगा. लेट मी चेक व्हाट इज ए बी डी, व्हाट इज बी सी. बी इज गिवन लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड approach towards implementation of labor law has led to several blatant violations. अब यहां पर स्टूडेंट्स ये आपको चीज ध्यान में रखनी है. ये जो देखो, ये जो सेवरल है, सेवरल इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. प्लीज ध्यान में रखना, सेवरल ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. यस. अब मुझे बताइए यहां पर नाउन कौन है? यहां पर नाउन है स्टूडेंट्स ये वायलेशन. यस. नहीं, सेवरल के बाद कह रहा हूं, फॉलोड बाय. तो वायलेशन आपको पता होगा शायद. देखो ये एक्ट होता है. देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा रहा था. व्हाट इज एक्ट कौन सा? वेदर नाउ टेल मी व्हाट इज एक्ट स्टैंड फॉर. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. ये क्या है? बोलो मुझे, एक्ट क्या है? आप में से यस, सर्वेश ने कहा. वेरी गुड सर्वेश. सर्वेश ने कहा कि सर एक्ट वर्ब है. वेरी गुड. अब आपको चीजें स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे वर्ब का अगर नाउन करना है तो एक्ट का क्या होगा? एक्ट का नाउन क्या होगा? ACTION. तो मैंने उसके आगे क्या लगा दिया? खाली ION. तो ये हो गया नाउन. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. जैसे तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों को, जैसे अभी यहां पर देखो, मुंह हो गया. मुंह, व्हाट इज मुंह स्टैंड फॉर? व्हाट इज मुंह? मुंह इज नथिंग बट व्हाट? वर्ब. और इसका मैंने अगर कर दिया मूवमेंट, मूवमेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट्स नाउन. तो उसके एंड में क्या लगा है? MENT. तो जिसके एंड में ION या MENT या SSION ऐसी चीजें लगती है तो वो होता है नाउन. और नाउन बनता कहां से स्टूडेंट? वर्ब से. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. सेकंड देख लीजिए. तो यहां पर प्रॉब्लम कहां पर है कि ये क्या होगा? सेवरल के बाद स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए? सेवरल रूल क्या है? सेवरल ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. तो वायोलेशन का क्या होगा? YO, अरे वेट मिनट, वायोलेशन का क्या होगा? यहां से लिख VIO, ये होगा वायोलेशंस. प्लूरल हो जाएगा. क्लियर? तो ये BD इनकरेक्ट है. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो BD अगर अगर BD मतलब ए नहीं होगा, इसका मतलब ऑल ABC नहीं होगा. अब AF देखो, when it comes to LED lighting technology there is no better. This is absolutely correct. And what is see the most elegant range of LEDs, lower on power consumption, low on maintenance and with customer satisfaction. Absolutely correct. तो आपका ऑप्शन होगा. Write down this. This is clear everyone? So you need to be, please do not be in hurry. Read all the sentences carefully. Check whether they are connected to each other properly and see whether there is a grammatical mistake or not. Clear everyone this?
यस, चलो नेक्स्ट देखो। यस, ट्राई करो दिस वन, ये वाला ट्राई करो पहले, फिर फोर्थ पे चलते हैं। ट्राई दिस वन। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं। What are the 6 sentences we have? In column 1, we have 3 sentences. Movement of freight 24 and passenger 50 km/h trains. Indian freight fares are among the costliest globally. The railway is unable to increase. What do you mean by freight? Freight का मतलब क्या होता है? Anyone knows? The freight is nothing but what? A truck, maybe a ship, जिसमें माल लोड करके ट्रांसफर किया जाता है. That is called what? Freight. Flight नहीं है, it is a freight. Please remember that. And that is what the speed of that freight, which is less than the passenger of the trains. Okay, okay. चलो ग्रेट। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब क्या हुआ है, लेट मी टेल यू। सेंटेंसेस आपको क्लियरली सारे दिख रहे हैं। व्हाट इज गिवन हियर? A moment of fright. Let me first check whether it is correct or not. B was Indian freight fares are among the costliest. Hope you know the meaning of freight. Freight is nothing but what? It is nothing but a truck. It is nothing but a ship which carry what? A good from one place to another. Costliest globally, while the passenger fare is the cheapest. Absolutely correct. अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। यहां पर ये मुझे कौन समझाएगा कि ये क्या है? एनीवन? प्रियंका, मृणाल? यस। व्हाट इज दिस स्टैंड फॉर? यस, भारती ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। दिस इज नथिंग बट व्हाट? सुपरलेटिव। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, भाग्यश्री ने सही कहा कि ये नथिंग बट व्हाट? ये डिग्री है। अब पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले डिग्री के बारे में समझ लेते हैं। सी, यस, हमें पता है 3 टाइप की डिग्री होते हैं। एक होगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेकंड क्या होगा? एक होगा कंपैरेटिव और एक होगा स्टूडेंट सुपरलेटिव। यस, clear everyone? So these are the what types of degree. One we have positive, one we have comparative, one we have superlative. Who will tell me पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा स्पीच डिग्री में यूज होता है? नाउन यूज होता है, वर्ब यूज होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन? कौन सा यूज होता है? हु विल टेल मी फास्ट? प्रणीत, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया प्रणीत ने और वो सही है। यहां पर ये चीज आपको स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए कि क्या एक्चुअली यूज होता है एडजेक्टिव। राइट डाउन दिस। यस, यस, एडजेक्टिव होता है। अब डिग्री हैज अ 3 पार्ट्स, वन पॉजिटिव, वन कंपैरेटिव, वन सुपरलेटिव। सपोज मैंने यहां पर लिया, यहां पर सपोज मैंने लिया चीप। So how do we identify whether it is a positive or negative, whether it is a positive or comparative? So to understand positive कैसे मेंशन होता है? As cheap as. Clear everyone? जिस एडजेक्टिव के पहले और बाद में as और बाद में as यूज होगा, जैसे अभी soon होता है, पता ये हमने सुना रहेगा as soon as। तो ये soon क्या हो गया? What is this soon stand for? ये है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। ये हमेशा ध्यान में रखो। जैसे एज चीप एज, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। अब
इसे मुझे अगर कंपैरेटिव में फॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा कंपैरेटिव में करने के लिए? वेरी गुड प्रणीत, क्या होगा? चीपर देन, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट? देन। ये आपको पता होना है, चीपर देन। यस। एंड व्हाट डू यू मीन सुपरलेटिव? सुपरलेटिव का क्या होगा? अब ईएसटी लगेगा, चीपेस्ट, लेकिन ओनली ईएसटी लग के मतलब है क्या? नहीं, तो उसके पहले क्या होगा स्टूडेंट्स? द आर्टिकल होगा, द चीपेस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। ये ओके, ये अगर आपको क्लियर हो गया है, वेरी गुड। यहां पर स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए, सी लेट मी एक्सप्लेन यू। यहां पर इफ आई प्रियंका is superior than the Raju. Yes. Now student, tell me, who will tell me whether this sentence is correct or not? See what I'm asking here, whether this sentence correct or not, yes or no, that's it. Please उतना ही मुझे बताइए. Okay, Tanvi is saying yes, Munal saying, Priyanka, everyone is saying yes. ओके ग्रेट। अब स्टूडेंट देखो, मैं आपको रूल समझाता हूँ, इससे बढ़िया, इससे बेहतर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा स्टूडेंट। सी, अब मैंने क्या कहा है स्टूडेंट्स? प्रियंका इज सुपीरियर देन राजू। समटाइम हम लोग कहते हैं ना। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, हु विल टेल मी व्हाट इज सुपीरियर स्टैंड फॉर? ये सुपीरियर क्या है? सुपीरियर मतलब ये है एडजेक्टिव। यस, वेरी गुड प्रणीत। Now what we are doing, we are making a what? A comparison between Priyanka and Raju. Yes or no? So as हमें बचपन से पढ़ाया गया है, when you make a comparison between two persons, so comparative degree always followed by than. ये हमेशा पता है। बट स्टूडेंट्स ये कब पॉसिबल होता है? लेट मी टेल यू कब होता है, पहले इसे चेक कर लीजिए। यहाँ ये आप लोगों ने लिख लिया? ओके चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। प्लीज पे अटेंशन नाउ। यस, देखो अब वो फॉलो कब होता है? सी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मुझे बताइए, हु विल टेल मी, गणेश टेल मी, अगर ये ग्रेट मैंने यहां पर लिखा है ग्रेट, तो ग्रेट हो गया पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा गणेश? यस गणेश, गणेश व्हाट इज गोइंग टू बी द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ दिस एडजेक्टिव? या प्रियंका मुझे बताइए, शुभम, एनीवन हु विल टेल मी कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ग्रेटर? ओ ग्रेट, तो यहां पर ये हो गया ग्रेटर, तो यहां पर आ गया ईआर, ये आपका ओके। और इसका वो मुझे बताइए सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट। यस, वेरी गुड। अब सी नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, प्लीज डू रिमेंबर। एज एवरीवन नोज, सी जैसे ग्रेटर है, ग्रेट है राइट, ग्रेट एडजेक्टिव है, उसका दूसरा फॉर्म बन गया कंपैरेटिव फॉर्म बना ग्रेटर, और उसका तीसरा सुपरलेटिव फॉर्म क्या बन गया? ग्रेटेस्ट बना। मतलब एक एडजेक्टिव के दो फॉर्म बनते हैं। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स ये लिखता हूं सुपीरियर, तो मुझे कौन बताएगा सुपीरियर का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? यस, अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, मोर सुपीरियर कभी भी नहीं होता है, मोर इंफीरियर भी नहीं होता है, तो इनके मोर नहीं आएगा, मोस्ट सुपीरियर कभी भी नहीं होगा, सुपर नहीं होगा। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा कि भाई जूनियर लिखा, मैंने एक जूनियर लिखा, तो आप बोलोगे मोर जूनियर बोलोगे क्या? या आपने कभी ऐसा सुना है जूनियरर? ऐसा कभी सुना है जूनियरर? या आपने कभी ऐसा सुना है जूनियरेस्ट? सुना है? नहीं। सीनियर बोला तो मोर सीनियर हो सकता है क्या? नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जिन एडजेक्टिव्स के फॉर्म नहीं बनते हैं,
जिन एडजेक्टिव्स के फॉर्म नहीं बनते हैं उनके बाद में क्या आएगा, टू आएगा. राइट डाउन दिस. सो यहां पर लिखो, एक मैं आपको देता हूं. दोज एडजेक्टिव्स, प्लीज राइट डाउन दिस, दोज एडजेक्टिव्स ending with endings with IOR, those adjectives ending with IOR always followed by to. Write down this. Clear everyone? So this is the way to remember. But what is the correct meaning? What is the correct explanation? Because इन adjectives के second और third form नहीं बनते. जैसे great का greater होता है, greater का greatest होगा, वैसे superior का superior, superiorest ऐसा कभी भी नहीं होगा. Please remember this. So what is the best way to remember? Those adjectives endings with IOR always followed by to. Clear यहाँ पर? except prefer. ये लिखो प्रेफर के बाद भी हम लोग कहते हैं ना, आई प्रेफर. समटाइम्स वी से आई प्रेफर कॉफी टू और टी. तो यहां पर कैसे होता है कि प्रेफर एक ऐसा है कि एडजेक्टिव है जिसके बाद में आयो और नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद में क्या होगा, टू. इसीलिए मैंने यहां पर लिखा ये अपवाद है, एक्सेप्ट प्रेफर. क्लियर एवरीवन दिस? चलो ग्रेट, थैंक यू एवरीवन. अब हम लोग इसमें कहां पर एरर है वो चेक करते हैं. अब यहां पर देखो स्टूडेंट, तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये हमने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन, व्हेनेवर देयर इज अ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू दैट. सी नाउ, पे अटेंशन. यहां पर क्या था, बीडी, अकॉर्डिंग टू मी बीडी वाज करेक्ट, आई थिंक सो, राइट? बीडी वाज करेक्ट. व्हाट इज बी? यस, यस. यहां पर देखो चीपेस्ट है, उसके पहले आर्टिकल द यूज किया, एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट इज एफ? मोमेंट ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रेन्स. ये स्टूडेंट सेंटेंस मैच ही नहीं हो रहा है. देखो, मोमेंट ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रेन्स. व्हाट इज एफ? रेवेन्यूज टू मैच एक्सपेंडिचर. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस. वो सेंटेंस और एफ वाले सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है. व्हाट इज सी एफ? द रेलवेज इज अनेबल टू इंक्रीज revenues to match expenditure. This is now, see, this sentence can be matchable, right? The railways is unable to increase revenues to match what? Expenditure. मतलब रेलवे जितना खर्चा हो रहा है उतना वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है. दिस इज करेक्ट. एंड व्हाट इज बी? लिखो बी. व्हाट इज बी? इंडियन फ्राइट फेयर्स आर अमंग द कॉस्टलीस्ट ग्लोबली, अमंग द स्लोअर कंपेयर टू. अभी यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर देखो, यस प्लीज पे अटेंशन. ये द है, तो एज एवरीवन नो द के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? दी स्लोएस्ट. और यहां पर यूज क्या किया है? स्लोअर. तो ई करेक्ट है, मतलब ई करेक्ट मतलब बी भी करेक्ट हो गया. तो ओनली ए एंड सी बोथ, ऑप्शन नंबर ई. क्लियर एवरीवन दिस? यस, ग्रेट. Thank you so much. Thank you so much. Great. Let's take. Yes, great. Thank you so much. चलो अब हम लोग यहाँ पर करते हैं. ये भी काफी अच्छा सेंटेंसेस है. ये आए हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार. लेट मी कम टू दिस पार्ट. यस, ओके. फोर्थ वाला करो. फोर्थ ट्राई करो.
ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा स्टूडेंट्स. यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस. और हमें सेंटेंस बनाने नहीं है, हमें खाली ऑप्शन में सेंटेंस को ऑप्शन दिए, खाली वो सेंटेंस को मैच करने जो ऑप्शन में दिए. आपको कौन से मैच करना वो भी नहीं आपको करना है, कौन से मैच करना है वो ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ है. तो आपके लिए काम और आसान है. हाँ, बट खाली मैचिंग थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस को थोड़ा चेक करना है, बस दैट्स इट. यस. सो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, यस, कुछ लोग कह रहे हैं लेट अस सी, लेट मी चेक. नितेश कह रहा है डी. चलो लेट सी. कांग्रेस सी, पहले एएफ देखो, व्हाट इज एएफ. कांग्रेस लीडर एचआर भारद्वाज. अब देखो यहां पर नाम दिया है एचआर, दे आर टॉकिंग अबाउट अ मैन. उसके बाद डेफिनेटली हु होना चाहिए. देखो यहां पर हु है. यस, कांग्रेस लीडर एचआर भारद्वाज हु वाज लॉ मिनिस्टर फॉर सेकेंड longest term. For what? For the second longest term in India, died of a cardiac arrest. He was 83. Absolutely correct. What is CED? Swedish actor Max von Sydow. Again, who देखो, who made his name in before featuring in its like Game of Thrones, died at the age of 90. Absolutely correct. And what is B? Indian origin Sonia Sehgal, 49, is said to take a charge of Gap, the largest apparel retailer in America, as its chief executive officer. ये भी स्टूडेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ए बी सी. राइट डाउन दिस, ऑल ए बी सी. ओके, क्लियर आप लोगों को ये? अब मैं आपको और एक देता हूं, ट्राई करो. यस, डू इट 7, डू इट 7. नीड टू अज्यूम 20. मुनाल, बी में आफ्टर नेम हु नहीं आया है. द रीजन इज दैट बिकॉज उसके उसके बाद एक एज आया है ना, 49 आया हुआ है, एंड देन देयर इज अ कॉमा. चलो डू इट. For column, need to ensure 24/7 electricity supply. In the past 5 years, the electricity sector India requires an overhaul. चलो करो ये पास. नीचे आपका ऑप्शन दिए हुए हैं. दिस विल टेक सी, ये प्रैक्टिस करोगे आपका बहुत होगा. प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे आज.
चलो ओके ओके, प्रियंका कह रही है ई है, लेट मी चेक। यस, ओके यहां पर देखो, व्हाट इज ए, AD need to ensure 24/7 electricity supply to all units. Absolutely correct. CD, India requires an overhauled. नहीं, ये सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है. What is B? In the past 5 years, the electricity sector. In the past 5 years, the electricity sector has seen only a piecemeal reforms. Yes, this is correct. So both A and C. Yes, E. Absolutely correct, Ganesh. Yes. Great. ओके, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे. यू गाइस आर डूइंग दिस वेरी गुड. ओके, 10 वाला करो. चलो ओके, भाग्यश्री ने कुछ पूछा है, लेट मी चेक. यस भाग्यश्री, यहां पर देखो, आपने अगर जो पूछा है यहां पर सी, सी ये वाला राइट. व्हाट इज सी? इंडिया रिक्वायर्स एन ओवरहोल्ड टू ऑल यूनिट्स इन अ. ओके, यहां पर इंडिया रिक्वायर्स एन ओवरहोल्ड नहीं होगा. दैट इज नथिंग बट व्हाट, टू रिपेयर और सर्विस. ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए. व्हाट इज 10? Okay, let me check.
ओके, फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एई? What is AE? IIT Bombay and Delhi are among the top 50 engineering colleges. Hold 5361 position last year. Is it the correct or not? AE correct or not? यस, प्रियंका ने सबसे सही बताया। यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के बारे में बात किया, तो यहाँ पर होल्ड नहीं होगा, यहाँ पर हेल्ड होगा। हेल्ड, वेरी गुड प्रियंका। सो ये गलत है। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा, बिकॉज ई सेंटेंस करेक्ट, मतलब जहां जहां पर ई होगा तो आपको बी चेक करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज CF? A total of 132 scientists left the DRDO in the past 5 years across the globe according to subject wise world ranking. तो देखो ये C और F का मीनिंगफुल नहीं है, दिस इज नॉट मीनिंगफुल सेंटेंस। सो व्हाट इज लेफ्ट? ओनली C। देखो C के साथ क्या है, अब देखो यहाँ पर C के साथ F है, वो मीनिंगफुल नहीं, लेकिन C के साथ देखो D जोड़ा है। लेट अस सी। A total of 132 scientists left the DRDO in the past 5 years. Yes, said Minister of State of Defense in a written reply in the Lok Sabha. This is absolutely correct. Option number E. Yes. Is this clear, everyone? Sorry, option number D. Yes. Sorry, Priyanka. Wait a minute. Option number D. Yes. Clear, everyone, this? Yes, great. चलो ये वाला ट्राई करो। 1 minute. Let me just get something to be. हाँ, ये वाला ट्राई करो। चलो A sentence, 16 coronavirus deaths reported. The government denied reports that up to. ये सबका डी आया है, वाह वेरी गुड। तन्वी का डी, भारती डी, कंचन डी, ग्रेट। सी व्हाट इज AD? 16 coronavirus deaths reported in Iran as of February 25. Absolutely correct. The government denied reports that up to 50 people had died in a single city. ये भी correct है. And what is C? Iran's death toll is ahead of South Korea's, with the later reporting 11 deaths from 1977 cases and the former 16 from June 15. Okay, absolutely correct. B, all correct. Students, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। अब थोड़ा सा इसका अपर वर्जन करते हैं, तो इसके असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लोगे फिर इसका असाइनमेंट्स। तो इसके असाइनमेंट्स आप सभी को ऐप पे मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट, नथिंग बट स्टूडेंट्स, मैथ द कॉलम। विल सी सेकंड पार्ट ऑफ इट। यस, ये ट्राई करो। अब यहां पर आपको देखो, जैसे हमें कैसे दिया था, यहां पर 1 है, यहां पर ABCD, मतलब यहां पर आपको सेम है, यहां पर कॉलम नहीं है, आमने सामने 2 कॉलम है, और आपको बस कॉन्सेप्ट सेम है, खाली आमने सामने 2 कॉलम है, आपको मैच करना है। जस्ट लेट मी जूम दिस।
Wait a minute. Yes. Just a moment, student. ये वाला ट्राई करो. यहां पर देखो ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहां पर डी है, ई है एंड एफ है. और आपको देखो, आपको यही बस, ये सारा मत पढ़ो, यही पढ़ो बस. इसमें से कौन सा होगा चेक करना है बस. क्या होगा, टेल मी फास्ट. सी स्टूडेंट्स, यहां पर देखो दो चीजें हैं. सी, लेट मी एक्सप्लेन. रीड दिस केयरफुली, सेंटेंस मीनिंग बनाओ उसका. सी, यहां पर स्टूडेंट्स पहले तो ये दिया हुआ है एज, पहले सीडी देखो. व्हाट इज सीडी? इंस्टेड ऑफ वेटिंग विद bated breath, we need to resist the fatigue that tends to overcome a long fight against an epidemic. See, understand the meaning of this sentence. ये अगर आपको meaning of the sentence स्टूडेंट समझ में आ गया, then ये थोड़ा सा हायर लेवल वाला है. ओके, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ bated breath? bated breath का मतलब स्टूडेंट ये होता है, इन अ ग्रेट सस्पेंस, वेरी एंशियसली और एक्साइटेडली. तो यहां पर दिया, इंस्टेड ऑफ वेटिंग विथ bated breath, we need to resist the fatigue that tends to overcome a long fight against an epidemic. This is the correct sentence we can say. What is BF? The flexibility of social norms could serve us better than heavy-handed application of laws. Post the, see, laws post, ये गलत है. laws के बाद post गलत है. laws post the economics growth above its potential and created high. Absolutely correct नहीं है. What is F? As RBI comes towards the end of its interest rate reduction cycle, it will have to navigate post. Again ये गलत हो गया. And what is BD? The flexibility of social norms could serve us better laws that tends to overcome. तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा. अब देखो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स बोला हुआ है, बेटर हेवी हैंडेड एप्लीकेशन ऑफ लॉज है, और यहां पर कोरोना के बारे में बात किया जा रहा है, एपिडेमिक. तो ऑब्वियसली बीडी भी नहीं होगा. तो ओनली ऑप्शन इज व्हाट, ए. सो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोगों को, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग करंटली. तो आई वुड सजेस्ट, प्लीज इंक्रीज योर रीडिंग, थिंक इन अ बॉर्डर वे. आपका रीडिंग आपको थोड़ा सा काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क. दिस इज काइंड ऑफ see, Priyanka, because there is no connection between B and D. The flexibility of social norms could serve us better than heavy-handed application of laws that tends to overcome a long fight against an epidemic. There is no connection between B and D.
The B sentence says something different and D sentence says something different. So ये ओके हाँ, बट सी कैसा होता है प्रियंका, यहाँ पर आपको हमेशा ये चीज चेक करनी होती है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट. सी कैसा होता है कि मे बी अकॉर्डिंग टू दैट यू मे बी करेक्ट, but you should be 100 correct, then only you will get a marks, because even I feel B and D is correct, but what exactly they want या और exactly वो sentence उससे exact connect होता है या नहीं होता है, that we have to see, then only you will get marks. ओके चलो ये वाला मुझे बताओ, सेकंड बताओ. यस, जस्ट सेकंड के पास आओ. 1 minute, just a moment, student. यस, सेकंड देखो. सेंट्रल बैंक्स इन होम कंट्रीज शुड आल्सो टुक. अब ओके, लेट मी जस्ट नीचे की भी ऑप्शंस आपको दिखा देता हूं. जस्ट अ मोमेंट. इट इज द सेम पार्ट है, कुछ अलग नहीं है. कि थोड़ा सा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, बेस्ड ऑन ऑफिसर लेवल वाला पार्ट है, मैनेजमेंट वाला. टेल मी इसका क्या आंसर होगा. सी बीएफ तो होगा नहीं, because governments in the region are actively rolling out economic stimulus measures to cushion their economics from remittances through formal channel. और ये होगा नहीं, this is no connection. What is A and E? Let's take what is A and E. Central banks in home countries should also look to ease. Okay, Deepak, the reason is that, see, you read this, both the sentences B and F carefully. There is no connection between these sentences. Central banks in home countries should also look to ease know you customer and regulatory requirements for. Yes, देखो, this is student, this is connected. Please check this. Yes. See, central banks in home countries should also look to ease know your customer and regulatory requirements for both traditional service providers as well as fintech companies to help reduce the average cost. What is CD? Let me check CD.
Policymakers need to take this one step further by also engaging in selling opportunities. Policymakers need to take this one step further by also engaging in banking channels to be utilized for cross-selling opportunities. I don't think so. C and D connected students. C and D का मुझे कुछ भी कनेक्शन नहीं लग रहा है. So option number only A and D. इसके when you solve this, you will get explanation with this. Remember this. Okay. Is this clear? So this is same pattern है. आगे आगे आपको करना पड़ेगा. Same questions है. आप लोग घर पे कर लोगे ये वाला पैटर्न. Yes. Okay. Okay, student. आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें. यू हैव टू ट्राई दिस. दिस इज काइंड ऑफ नथिंग बट व्हाट जो प्रीवियस वाला पार्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन कंप्लीटली वी कैन से वन क्लेरिकल वाला पार्ट था. ये थोड़ा सा ऑफिसर वाला पार्ट है. ये तभी समझेगा जब आपका थिंकिंग थोड़ा सा ब्रॉड होगा और आपका हैबिट होगा टू रीड व्हाट न्यूज़पेपर बेस्ड ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? और मे बी डेली न्यूज जो पढ़ रहा है, डेली न्यूज जिसको पता है वो ये आराम से कर पाएगा. Okay, now we'll see. Now we'll check your vocab part. Okay, one part we have done. Just a moment, student. Yes, chalo, great. Okay, is it visible to everyone? The screen is visible. Yes. अब थोड़ा सा आपको this is nothing but students filling the blanks where you have to check your vocab part. You need to understand the meaning of this और आपको करना पड़ेगा ये. Just a moment. Yes, see. ओके, चलो आपको जो जो दिख रहा है अभी सी लेट मी थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं. This is nothing but students part of fill in the blanks where we will check your vocabulary how strong you have. Now see ये वाला क्वेश्चन करो. वन मिनट. ये आपको आया तो 3 मार्क्स के लिए होता है. 2, 4 and 5. टेल मी व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी. आपका अगर डन हो गया रहेगा तो मुझे बताइए, फिर हम लोग क्रॉस कर लेंगे. अब मैंने बहुत सर्वेश बहुत जूम किया हुआ है. स्टिल यू वांट मोर जूम. तो 1 मिनट. इससे ज्यादा जूम सर्विस नहीं होगा. आई वुड रिक्वेस्ट आप अपने स्क्रीन को जूम करो सर्वेश. फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या होगा मुझे बताइए आंसर. आप लोग अपने यहां पर मार्क करके रखो, फिर मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करवाता हूं. अपने बुक पे मार्क करके रखो इसे.
ओके थर्ड मृणाल थर्ड नहीं करना है, मैंने आपको 4 ही बोला है करने के लिए, ये फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ, डोंट डू थर्ड। हो गया आप लोगों का वन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आया तो स्टूडेंट्स थर्ड मार्क के लिए आता है। चलो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, fables are stories that have been told throughout past generations, trickling to the present to deliver important lessons about life. Please remember यहाँ पर ये जो ट्रिकलिंग है, ट्रिकलिंग दिस इज नथिंग बट ट्रिकल, ये ट्रिकल एक्चुअली है, और ये फ्रेज है वेन एवर देर इज अ ट्रिकल विच इज ऑलवेज फॉलोड बाय डाउन, ये हमेशा ध्यान में रखो। तो ट्रिकल के बाद डाउन ही होगा, तो ये ट्रिकल कोई भी सेंटेंस में अगर यूज होता है, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं भी समझा तो फिर भी ट्रिकल के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डाउन होगा, बिकॉज ट्रिकल डाउन दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ फ्रेज। क्लियर एवरीवन दिस? अकॉर्डिंग टू योनहैप, किम हैड नॉट सर्जरी, अब हैड नॉट, सर्जरी कभी होता है अंडरगॉन, अंडरगॉन यहां पर बी होगा। होप दिस क्लियर एवरीवन? Jeff is giving us the fuel, vision and inspiration to run both marathon and sprint, ये भी होगा। And fifth, through reading fables, your child, you will be imparting truths to them that would otherwise to be not so fun to teach. Through readings, fables, fables with your child, यहाँ पर होगा। Is this clear everyone? तो 4 में से कितने लोगों को 4 मिला है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच। नहीं नहीं सर्वेश, फैबल्स का सी नहीं होगा, इट शुड बी थ्रू रीडिंग फैबल्स विथ योर चाइल्ड, टू योर चाइल्ड कभी भी नहीं होगा। विथ का मतलब होता है अकंपनाइड बाय, मतलब आपके चाइल्ड के साथ। इंपार्टिंग के बाद देखो यहां पर टू यूज किया गया है, yes, ये ध्यान में रखो, आपको इंपार्टिंग के पहले वाला फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, और वो एक्चुअली फैबल्स के बाद वाला है, ये ध्यान में रखो। थ्रू रीडिंग फैबल्स विथ योर चाइल्ड, and that will give you grammatically correct sense, otherwise it will be wrong. yes, अभी यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है, लेट्स सी। यस करो फास्ट, 7 8 11 and 12, do it fast. Okay, once you done, please done कर दीजिए, then I'll give you answer for that. Already hit by the coronavirus induced shutdowns,
share price drop. Okay, share price drop $26.20. Yes. 7 का क्या होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट शुड बी सी, बिकॉज कहां से कहां तक हो गया? ड्रॉप फ्रॉम, देखो, ड्रॉप फ्रॉम $26.20 टू $6.40. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट इज 8? 8 का क्या होगा? Rookie 61 will said scientists use the yacht for free to plot oceanic garbage patches, dash fish stocks and test water acidity levels. For free to plot oceanic garbage patches, assess fish stocks. Access नहीं होगा. See, access का मीनिंग अलग है स्टूडेंट्स, access का मीनिंग अलग है. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय access. बहुत लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, वेदर बहुत लोग ए को मार्क करते हैं. व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस का मतलब होता है ऑब्टेन. एंड व्हाट डू मीन बाय असेस? दैट इज नथिंग बट इवैल्यूएट और एस्टिमेट द नेचर. एस्टिमेट द नेचर, ये ध्यान में रख लीजिए स्टूडेंट्स. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट भाग्यश्री. एंड टेस्ट वाटर एसिडिटी लेवल्स, तो ये नेचर का टेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली एस्टिमेट द नेचर, तो यहां पर होगा स्टूडेंट असेस. 11 का बोलो 11. तो यहां पर थोड़ा आपका ओकैब भी स्ट्रांग होना चाहिए, बट ये अच्छा है कि 11. और स्टूडेंट्स यहां पर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रियंका, कांचन, कि जहां अगर समझो इन है तो इन ही है, वो क्यों है उसको रीजन नहीं होता. इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जहां पर अगर आपको पता है कि एट ही आएगा तो वहां पर उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो वहां पर एट ही होगा. आप नहीं कह सकते कि वहां पर इन होगा. अब देखो, मैंने अगर बता दिया शी शाउटेड एट मी, करेक्ट है, या शी शाउटेड ऑन मी करेक्ट है? Which one is the correct? Yes. Now see, some people are saying on and some people are saying at. अब यहां पर देखो, बचपन से हम लोग यही कहते हैं कि शी शाउटेड ऑन मी, जैसे ही इज जूनियर देन मी, यही कहते हैं. ये गलत है. यहां पर देखो, शी शाउटेड एट, तो शाउट के बाद आपका ये, अभी मुझे बताइए, एट, ऑन, अंडर, फ्रॉम, सिंस, ओवर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स प्रीपोजिशंस. तो वेरी गुड मृणाल. यस, वेरी गुड प्रियंका. तो प्रीपोजिशंस कहां कहां पर यूज होता है? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, इस पे आपको एक दो क्वेश्चन ग्रामर मिस्टेक पे होता ही होता है, तो ये आप यूट्यूब पे जाइए और प्रीपोजिशंस एरर ढूंढिए, या प्रीपोजिशंस कहां कहां पर यूज होता है, वो कौन से वर्ड्स के बाद यूज होता है, वो आपको पता लगना चाहिए. तो शाउटेड के बाद एट ही होगा. अब कोई लोग कहेंगे कि ऑन ही होगा, तो उसमें देयर इज नो आर्गुमेंट. एट तो एट ही होगा, वहां पर ऑन. खाली यहां पर ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे मैथ्स में आपको पता है कि 2 × 2 क्या होता है? 4 होता है. यहां पर ये कंफर्म है कि 4 ही होगा, लेकिन यहां पर ये कंफर्म नहीं होता है कि एट है क्या ऑन है, लेकिन होगा एट. और उसके लिए कोई अगर ऑन लेके अगर आर्गुमेंट करता रहेगा तो वो गलत है, ये ध्यान में रख लीजिए. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये दिस विल डेवलप बाय रीडिंग. मैक्सिमम टाइम आप जितना अपना फोकस रीडिंग पे करोगे तो आपका ये डेवलप हो जाएगा. टेल मी व्हाट इज 12 आंसर वुड बी. 12 का आंसर क्या होगा? ओके, व्हाट इज 11 आंसर? यस, वेरी गुड सर्वेश. The wolf killed a great many of the boys' sheep and then slipped away into the forest. Absolutely correct. And tell me what is 12 answer? Yes. Absolutely correct.
But when they got there, they found the boy doubled up with laughter at the trick he had played on them. उनके ऊपर. Absolutely correct. तो यहाँ पर at them नहीं होगा, यहाँ पर on them ही होगा, over them नहीं होगा. Over the table हो सकता है, under the table होगा, but on the table कभी भी नहीं होगा. So these are the prepositions कहाँ पर use होने चाहिए. इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को खुद को भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. There are many videos available on YouTube based on part of speech. I would request each and every student, please watch one part of speech every day, make a note of them and do a lot of practice. Will definitely give you very good marks in English. Let's move ahead. कौन सा पूरा दिख रहा है आपको? यस, ये वाला करो. 15, 19, 16 and 20. चलो, टेल मी फास्ट. वंस डन देन मैं आपको इसका क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूं. Okay, now students see. Okay, Priyanka, चलो let's me see. यहाँ पर सबसे पहले होगा the woodcutter explain the problem and ask the goddess. यहाँ पर देखो ask नहीं होगा, वो क्या करेगा वहां पर request करेगा. ये ध्यान में रख लीजिए. So please understand the meaning of ask and request. Ask का meaning भी same है. Ask मतलब वो पूछ रहा है, request मतलब he's requesting to give his what? X back. ये ध्यान में रख लीजिए यहाँ पर. So यहाँ पर अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया, 15 का होगा सी रिक्वेस्टेड. व्हाट इज 16? वन डे while it cutting a tree nearer a river, his ex slipped out of his hand and fell. किसमें गिर गया वो? Into the river. Yes, very good. Okay, what is 19? The war caused not only destruction and death, but also. It was very simple. Not only but also था वो. And what is 20? Although it is hard to agree to such sweeping changes, yet they must be implemented. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, दीपक यहाँ पर प्लीज हमेशा ध्यान में रखो, ना स्टील होगा, ना एज होगा, ना वेन होगा. Whenever although यूज होगा, although, प्लीज रिमेंबर, although यूज होगा तो वो सेंटेंस में आप yet यूज कर सकते हो. रिमेंबर, बिकॉज why is it so? There is, because this is nothing but compound sentence where two sentences are joined by what? Yet, starting with what? Although. Although it is hard to agree to such sweeping changes, yet they must be implemented. तो यहाँ पर दो sentences को yet से join किया. Although and yet can be used in the same sentences. So this is the correct form, B. Yes. Is this clear, everyone? So you can make a minor mistakes, but see, mistakes are, being a human being, mistakes are bound to be happen. But
आप जब एग्जाम में फाइनल एग्जाम में जाओगे तो यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ मिस्टेक्स बिकॉज योर वन मिस्टेक विच विल कॉस्ट यू लॉट. Clear everyone? So do lot of practice. Hope this clear. So what we have done, students, we have done with two topics today. One, match the column, and one, fill in the blanks. इन दोनों के आपको असाइनमेंट्स आज मिल जाएंगे. And do students a lot of practice because this required a lot of practice. And I would suggest everyone, do not depend on कि भाई हम कब पढ़ाएंगे. मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट किया था. If you want to score very good marks in English, I would say out of in English. So I would suggest कि आप लोगों को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आता है, कौन सा टॉपिक आता है, वो टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करो. उसके पहले अगर इफ यू फील दैट योर ग्रामर इज वीक, आई वुड सजेस्ट कि वर्ब है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3. जैसे सपोज इफ आई गिव यू टॉक या टेक मैंने दिया, तो मुझे टेक वर्ब का फोर्थ पार्ट कौन होगा मुझे बताएगा. बोलो वर्ब का फोर्थ पार्ट क्या होगा. नहीं, यही प्रॉब्लम है. देखो स्टूडेंट्स, मुनाल, दिस इज नॉट फर्स्ट पार्ट, नॉट टेकन इज द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर वर्ब का फोर्थ पार्ट हमेशा याद रखना है कि किसी भी वर्ब को, प्लीज रिमेंबर दिस, किसी भी वर्ब को अगर आपने आईएनजी लगा लिया तो ये हो जाएगा टेकिंग. दिस इज कॉल्ड वर्ब का फोर्थ पार्ट. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो गो होगा तो होगा गो का गोइंग. सो ये चीजें तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वो बेसिक पहले कर लीजिए. देन डिग्री कर लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच को करें जिसमें से एडजेक्टिव पे फोकस करो, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जिरंड क्या होता है, ये आप अपने आप से करो खुद, उसका नोट्स बनाइए तो आपको और पढ़ने में स्टूडेंट्स बहुत मजा आएगा. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? So it was really a wonderful session with you all. We have covered 2 topics today, and thank you for joining. And it's almost 9:30. I would suggest everyone, please take a rest, have healthy food, sleep well, and we'll meet tomorrow at same time, 8 o'clock. Clear everyone? And assignments of the same will be uploaded soon. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you. Bye-bye. Yes, thank you, Priyanka. Thank you, Tanvi. Thank you, everyone. Thank you so much.